this FPS game. In this part I'm going to show you how you can bring any 3D character. For this particular game I have decided to download a character from Mixamo.com. Mixamo.com is a very good open source website from where you can always download different characters with the different animations on them. For that you need to log in. If you do not have signed up, you can always uh, sign up first with the Google account and log in. Okay, see, I have just logged in with Mixamo.com. It's a free account actually. Uh, Now in this website you can see different characters as well as different animations. So first choose the character. For example, I want to choose this old buddy, this Ab character as as an enemy, just like I added the enemy in this game. ठीक है, इसी तरह मैं एक enemy यहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करती हूँ. तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करूँगी, आई कैन हैव एनी अदर काइंड ऑफ एनिमी एज वेल, लेकिन ये है कि इसको मैं और भी कोई एनिमी चूज़ की जा सकती है. फॉर एग्जांपल ये प्रिजनर कर लेती हूँ. ओके, दिस एनिमी इज़ लाइक सम यू नो इसको हम लोड करते हैं. Okay, so now this character is loaded. Now what I'm going to do, I'm going to go into the animations tab and I'm going to select any animation. For example, uh, a simple walk animation maybe. Let me just find this walk animation. uh, okay, so now I found this unarmed walk and I'm just going to apply this unarmed walk on this character. So this character will start moving, ठीक है, in the forward direction in a walking animation. ठीक है जी. So now what I'm going to do, I'm going to download this character by clicking this download button. Make sure that you have signed in, and I'm going to select the format of FBX for Unity. Okay. I'm going to select this FBX for Unity, and with skin and frames per second are 30. You don't have to select anything from keyframe reduction, and just download this character. This character will be downloaded somewhere in the download folder of your system, and it will take just few minutes. Okay, now this character is now in the download section of your drive. I'm just going to import that character.
Okay, I'm just going to import it as new asset from the download folder. This is the prisoner that I have downloaded with the unarmed walk attached to it. Now once you have this character inside the assets folder, you're going to select this character. You're not going to bring this character in the scene right now. Just first go into the इंस्पेक्टर ऑफ दैट कैरेक्टर, ठीक है, सीन में लाए बगैर। और आपने पहले इसको करना है, सबसे पहले जाके आपने इसको रिग करना है, रिग पे जाना है और इसकी जो एनिमेशन टाइप है उसको ह्यूमनॉइड करना है, ठीक है। उसको अप्लाई कर दें यहाँ पे। देन मे बी समथिंग, ओके चलें देख लेते हैं क्या एरर है। और यहाँ पर हमने अगर इसको हम जेनेरिक ही रखते हैं तो क्या होता है, वेट, अच्छा यहाँ पे हमने जो इसमें एनिमेशन दी हुई है इन्होंने इस कैरेक्टर के अंदर, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट अगेन, आई थिंक आई हैव डन सम ब्लंडर ओवर हियर। मैं यहाँ पे इसको लेकर आती हूँ, ठीक है। इसकी एनिमेशन में मैं इसके लूप टाइम को, यहाँ पे इस कैरेक्टर को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने इसके एनिमेशन में जाके इसके लूप टाइम को चेक कर दिया ताकि ये रुके नहीं चलते चलते। उसके अलावा व्हाट आई हैव डन, आई विल गो इनटू द मटेरियल्स एंड आई विल एक्सट्रैक्ट द टेक्सचर्स इनटू द टेक्सचर फोल्डर। उससे क्या होगा कि ये जो कैरेक्टर है, अब जो भी इसके ऊपर स्किन आपने देनी है वो अप्लाई हो जाएगी और उसको फिक्स नाउ कर दें यहाँ पे। तो अब ये कैरेक्टर जो है जब आप इसको यहाँ लेकर आएंगे तो इसके ऊपर वो टेक्सचर्स होंगे जो आपने एग्जामों से एग्जैक्टली डाउनलोड किए हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर अगर आप देखें तो अब यहाँ ये कैरेक्टर आपके पास आ गया, ठीक है। इस कैरेक्टर को अगर हम गौर से देखें तो इसके ऊपर एनिमेशन अभी कोई अप्लाई नहीं हुई, देयर इज़ नो एनिमेटर इन इट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर, ये हमारे पास अनआर्म्ड वॉक ऑलरेडी मौजूद है, तो हम ये करेंगे कि इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और वी विल गो इनटू द विंडोज़, वी विल मेक अ न्यू एनिमेशन बाय सिलेक्टिंग दिस एनिमेशन एंड वी विल गो टू क्रिएट। क्रिएट करने के बाद हम एसेट्स के फोल्डर में एक नया एनिमेशन का फोल्डर भी बना देंगे, ठीक है। और हम उस एनिमेशन के फोल्डर में हम वॉक नाम से कोई भी एनिमेशन क्रिएट कर देते हैं। अब क्या होगा, नाउ वी विल क्लोज दिस विंडो। यहाँ प्रिजनर के अंदर एक एनिमेटर बन गया है जिसके ऊपर हमने इसको एवटार एक तो हमने देना है ये प्रिजनर वाला, वेट इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारा एनिमेटर खुल गया जी। दिस इज़ द वॉक एनिमेशन बट दिस एनिमेशन इज़ मेड बाय यू। तो आपने इस एनिमेशन को कुछ नहीं करना, आप इसको यहाँ से इस एनिमेटर के अंदर ये जो वॉक एनिमेशन आई हुई है ये आप डिलीट कर देंगे एनिमेशन के फोल्डर में से, और वॉक स्टेट के अंदर एक अनआर्म्ड वॉक जो है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जो कि इस कैरेक्टर के साथ आपने डाउनलोड की थी, वो यहाँ आपके एसेट्स के फोल्डर में मौजूद होगी, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो दिस वॉक एनिमेशन दैट यू जस्ट क्रिएटेड, जो क्लिप आप उसको पास करें वो वाली वॉक नहीं है, क्योंकि आपने वो तो एक डमी वॉक बनाई हुई थी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस स्टेट जो कि आपने एक एनिमेटर बनाने के बाद क्रिएट कर लिए, आप उसको वो क्लिप पास करेंगे जो आपने डाउनलोड की थी, ठीक है जी। अब ये वॉक करेगा, ठीक है, ये कैरेक्टर जो कि आपने उसको अनार्म्ड वॉक दी हुई थी। और उसके अलावा हमने क्या इसमें, चलें हम इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं कि क्या ये कैरेक्टर जो है वॉक करता है। ऑब्वियसली हमने अभी उस पर कोई और स्क्रिप्ट नहीं लगाई है तो वो वॉक कर रहा है। एक तो इसका लूप टाइम हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि इसमें क्या है सच इशू है। ये हमारा कैरेक्टर था जी, और इसका मैंने लूप
टाइम तो चेक किया हुआ था इसको, मैंने अप्लाई भी किया हुआ था। इसकी रिग में ह्यूमनॉइड मुझे करना है इसे कि नहीं करना है। अच्छा चलिए हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। So what is going on? Let me just, is this character moving? Let me just move forward. This character is not moving. Wait. Okay, for this FPS game, I'm going to switch the character, and maybe I'm going to shift to these other characters that I downloaded. Let me just download this clown. This is the overall look of this character, ठीक है। और इसको मैं अगर एसेट्स में जाके इंपोर्ट कर लेती हूँ तो दिस इज़ बेसिकली द क्लाउन दैट आई एम गोइंग टू इंपोर्ट। अच्छा जी, अब इस क्लाउन को भी जाके मैं इसको ह्यूमनॉइड करूँगी। और बेसिकली जो कैरेक्टर पहले मैंने इंपोर्ट किया था उसका ह्यूमनॉइड टाइप जो थी उसमें कोई एरर था, जिसकी वजह से वो वॉक तो कर रहा था लेकिन मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। बिकॉज इट्स एन ओपन सोर्स वेबसाइट तो मे बी कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो इस तरह के हो सकते हैं। उसके अलावा इसकी एनिमेशन में जाके मैंने लूप टाइम इसका इनेबल किया था। मटेरियल्स में जाके आप एक्सट्रैक्ट कर लें इसके मटेरियल्स को, टेक्सचर्स को सॉरी फिक्स करें, ठीक है। अब आपका ये जो कैरेक्टर है ये यहाँ इट्स रेडी टू प्लेस, ठीक है जी। आई कैन मेक इट, इसका मैं साइज़ जो है वो मैं भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ 1.2 ताकि ये हमारे एनिमी और उसमें कोई ज़्यादा चेंज ना लगे। इस कैरेक्टर के ऊपर एनिमेशन लगानी है मुझे तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर अगेन एक एनिमेशन बना लूँगी। उस एनिमेशन को मैं एनिमेशन के फोल्डर में रख के उसका नाम वॉक रख देती हूँ जैसे मैंने पहले किया था, ठीक है। और यहाँ पे इस कैरेक्टर को क्लिक करूँगी जब, तो उसका एनिमेटर जो है आई वांट टू ओपन दिस कंट्रोलर, और इस वॉक जो स्टेट है खुद ब खुद क्रिएट हो गई है जब मैंने वॉक की एनिमेशन बनाई। उसके साथ जो क्लिप अटैच है वो भी वॉक है, बट दिस क्लिप हैज़ नथिंग क्योंकि ये मेरी अपनी बनाई हुई एक क्लिप है जिसमें मैंने कोई मूवमेंट वगैरह नहीं दी हुई। तो मैं इस वॉक को डिलीट कर दूँगी एंड आई विल पास अनदर क्लिप ओवर हेयर जो कि है मे बी इसका नाम जो है वो मैं वॉकिंग, ठीक है जी। ये वाली एनिमेशन मैंने डाउनलोड की थी। अब क्या होगा कि ये कैरेक्टर जो है ये जब मैं प्ले करूँगी तो ये वॉक करेगा, ठीक है। इट विल स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है, जैसे कि एनिमी कर रहा है। इसको अगर मैं एनिमी स्क्रिप्ट पास कर दूँगी तो इट विल मूव टूवर्ड्स द FPS एज वेल, ठीक है जी। तो इसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि ये हमें दूसरे एनिमी के हिसाब से ही लगे, ठीक है। मे बी यहाँ हम इसको 3 कर देते हैं। और अब ये अगर हम देखें तो ये थोड़ा करीब है वो थोड़ा दूर है। यहाँ पे भी हम एनिमी स्क्रिप्ट इसको पास कर देते हैं, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो अटैच कोलाइडर, बॉक्स कोलाइडर टू इट, ठीक है। उस बॉक्स कोलाइडर का मैं वाई थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, सॉरी, ठीक है जी। और इसके साथ डाई एनिमेशन जो है वो हमारे पास ऑब्वियसली अभी नहीं है। हम वो एनिमी वाली एनिमेशन से ले लेते हैं।
तो मैं इसको एक तो मैं ये FPS पास कर दूँ, ये FPS कैरेक्टर जो है वो मुझे पास करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर एनिमी स्क्रिप्ट लगाई हुई है मैंने, और इसका अगर मैं कंट्रोलर खोलूँ तो वॉक एनिमेशन तो ये बनी हुई है, चलो जो मैंने डाउनलोड की थी, लेकिन डाई एनिमेशन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मेरे पास डाई एनिमेशन है उससे उठा सकती हूँ। ठीक है, मैं एक न्यू स्टेट क्रिएट करूँगी, उसका नाम मैं स्टेट को क्लिक करने के बाद उसका नाम मैं डाई रख दूँगी। ठीक है, और इसका नाम डाई हो गया। इसको मैंने जो क्लिप देनी है वो मेल डाई है मेरे पास, ये वाली, दिस इज़ मेल डाई। ठीक है, और क्योंकि इस कैरेक्टर को भी मैंने यही मेल डाई ही दी हुई है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस क्लाउन को भी मेल डाई मैं नई स्टेट बना के कर लूँगी। यहाँ पे भी मैंने एक ट्रांजिशन बनानी है, इसी तरह जैसे मैंने उसके लिए बनाई थी दूसरे एनिमी के लिए, और इसकी ट्रांजिशन के ऊपर एक पैरामीटर मैं क्रिएट करूँगी, उसका नाम भी मैं इस डेट ही रखूँगी, उसको इनेबल करूँगी, और इस ट्रांजिशन पे मैं इसको ट्रू कर दूँगी। ठीक है जी, तो अब क्या होगा कि आपका जो एनिमी है वो भी डाई हो जाएगा, जो आपने अभी डाउनलोड किया था ये वाला एनिमी। ठीक है जी, वी विल ट्राई, मेरा ख्याल है, और हमारे पास हमने कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको मैं मैक्सिमाइज ऑन प्ले कर लेती हूँ कि हमारे पास ज़रा जगह हो। दिस क्लाउन जो है वो इट्स मूविंग इन अ वेरी फनी वे एक्चुअली। ठीक है, तो ये डाई हो गया, और ये हमने जो हमारा दूसरा एनिमी था ये भी डाई हो गया। ठीक है जी, सो वी कैन ऑलवेज हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस वेबसाइट। ये क्लाउन भी मैंने इस mixamo.com से ही डाउनलोड किया था बेसिकली, और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो समटाइम्स ये होता है कि ओपन सोर्स में थोड़ा सा आ जाता है हमारे पास प्रॉब्लम कैरेक्टर्स में। ठीक है, इस कैरेक्टर का नाम था वाइट क्लाउन। ठीक है जी, ये वाइट क्लाउन था हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो इसके साथ मैंने जो सिलेक्ट की थी एनिमेशन, ये एनिमेशन थी। ठीक है, इस आप यहाँ से भी कुछ एनिमेशन टेस्ट नहीं है, सिलेक्ट कर सकें और आप वो वाली क्लिप पास कर सकते हैं जी। ये वाली सिंपल वॉकिंग एनिमेशन है जो मैंने यहाँ से सर्च की है, तो ये इस पर आ गई है। ठीक है, ये वॉकिंग टू डाई है। इसी तरह जो एनिमेशन मैंने जी, ठीक है, यही एनिमेशन थी जो मैं इसको लेकर आई हूँ। तो ये इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है चलने का जो मैंने रखा हुआ है, लेकिन आप बहरहाल इसको सीन में देख सकते हैं कि इसका जो वॉक स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज उसका जो पॉस्चर है वो थोड़ा वाला है उसका। होगा इनटू लैगिंग, आई डोंट नो, बहरहाल एनी हाउ बस हम एंड करने लगे हैं इसको। ठीक है, तो ये देखें, ये क्लाउन का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपने उसमें वेबसाइट पे देख रहे हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब मैंने इसको यहाँ से इस कैरेक्टर को जब मैंने ह्यूमनॉइड किया था तो उसकी वजह से इस कैरेक्टर का एक एवटार क्रिएट हुआ था जो कि डायरेक्टली
इसके एनिमेटर में पास हुआ। ठीक है, तो ये मेक श्योर कि जब हम इसको ह्यूमनॉइड करते हैं यहाँ से चूज़ करने के बाद, तो एनिमेटर के अंदर जो ये कंट्रोलर है उसके साथ एक एवटार है। अगर आप उसको एवटार नहीं देंगे, सपोज़ मैं इसको ये नन कर देती हूँ एवटार को, तो आपका कैरेक्टर उस तरह से मूव नहीं करेगा जो रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आप इसको प्रैक्टिस करें, और अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑन द वीडियो कमेंट्स एज वेल एज आप जो है उसमें क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आगे मैं मज़ीद जब कोई गेम अपलोड करूँगी तो आई लेट यू नो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।